So before that, like before we get into process injection, like I want to ask the question, one question to each one of you. Like, what do we mean by a process? Like, of course, with respect to a operating system. Okay, like in daily life, we use an operating system like Windows, Linux, right? हम Windows use करते हैं, हम Linux use करते हैं. तो एक process होता क्या है? Like, if I ask you people, anyone, what is a process? Any running services is known as process. Any running services? अच्छा, okay. And anything else? Anyone? Any application that is running but taking some resources with it to run. Yes, good, very good. Good answer. Okay, anyone else? Okay, no problem. So of course, like what is a process? A process is nothing but an application and which is on a running instance. I mean, which is on a running state, right? So when a process is at a running instance, okay, or in a running state, we can call it as a sorry. When an application, I'm so sorry. So when an application is at a running state, okay, we can simply call it as a process, right? This is what we can simply say. And for example, there are many tools like there are Task Manager, there are another alternatives to it. For example, Process Hacker, right? So I have this Process Hacker right here with me. Okay, let me open this. So जब मैं ये Process Hacker को open कर रहा हूँ, and suppose I'm opening any tool, let it be for example Firefox. Okay, so when I open Firefox, you can see that a process has been created. Okay, a Firefox process has been created, right? And many instances like एक processes के multiple child process भी हो सकते हैं, ठीक है? So you can see that Firefox has created many child instances of it, right? So and at the same time there are processes like कुछ यहाँ पे system processes भी चल रहे हैं, आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे लाइक डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसेस होते हैं एक सिस्टम के अंदर, ठीक है? तो जैसे कि ये मैंने जो एप्लीकेशन रन किया, आई क्लिक्ड ऑन एन एप्लीकेशन एंड बिकम एन प्रोसेस. एंड वन थिंग व्हिच यू सेड दैट इट ऑफ कोर्स यूजेस सम रिसोर्सेस. यहाँ पे कुछ रिसोर्स यूटिलाइज करते हैं हम. यू कैन सिंपली गो टू प्रॉपर्टीज. ओके, and under properties you can see that there are many things like there are threads, token, okay, modules, memory, environment, handles, GPU, disk and network. Okay, so there are many sections inside a process. Okay, तो एक प्रोसेस में काफी सारे तुम्हारे रिसोर्सेज भी होते हैं, काफी सारी चीजें भी होती हैं, ठीक है? एंड इफ यू go to the high level architecture, you can see that we saw that a process is associated with the primary token, a process has a virtual address space, a process has an executable image. We'll get into those things. Of course we will not try to understand everything here today. Okay, but we would like to understand the basic things which are important for from the perspective of process injection. Okay, so हमारे लिए लाइक एक प्रोसेस के अंदर हमने देखा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है एक वर्चुअल एड्रेस स्पेस. ओके, लेट मी एक्चुअली. ओके, so the virtual address space actually. Okay, so a process has its own virtual address space. मतलब जब आप एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हो एक सिस्टम के अंदर, ठीक है? तो एक मेमोरी, उसको एक मेमोरी एलोकेट की जाती है, ठीक है? एंड इट फील्स लाइक ये मेमोरी उसी का है, ठीक है? लाइक उसी सिर्फ उसी के लिए रिजर्व्ड होता है. तो जितने भी वो रिसोर्सेज अपने, जैसे कि रूडी ने शायद कहा कि इट टेक्स सम रिसोर्सेज, राइट? तो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं यहाँ पे, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो एग्जीक्यूटेबल इमेज हो, प्राइमरी टोकन हो, जितने भी आप चीजें देख रहे हो, ये सब एक एड्रेस स्पेस के अंदर आते हैं. इसे हम वर्चुअल एड्रेस स्पेस कहते हैं, ठीक है? So it's a very important thing, especially for our discussion today. This point, okay. बाकी आप बाकी सारी चीजों को सही से स्टडी कर सकते हो. A process has a important handle table. Okay. हैंडल टेबल क्या होता है इसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में थोड़ी देर, ठीक है? अभी के लिए फिलहाल आप समझो कि एक हैंडल टेबल भी होता है. इट हैज टोकन, ओके, प्राइमरी टोकन, इट हैज सम एग्जीक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स एंड अगेन threads. Okay, like okay, so someone told me about process, but if I ask you people about what exactly is a thread के बारे में पता है क्या किसी को? Like सबने ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो. अगर आप सेकंड या थर्ड ईयर से हो, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि सेकंड फर्स्ट ईयर को थोड़ा पता हो थ्रेड के बारे में, बट इफ यू गाइस नो अबाउट थ्रेड्स, so what are threads actually? If I ask you, threads क्या होता है? What are threads? Uh,
I have heard this term before. I think in threads, I think there is something with applications which taking a resource only. It's like a Mhm. singular instance in which it has a shared resource, I think, and it's taking one thread. It takes multiple threads sometimes, or a singular thread. I think multi-threading came later, and previous computer just a Mhm. single thread something. I Yeah, think I have partially heard correct, this. right? Partially correct. Like, of course, I would like to ask this to like even, for example, Abhishek is there. He's from third year. Hey, Abhishek, operating system subject पढ़ा होगा, right? And operating system के अंदर आपने शायद पढ़ा हो थ्रेड्स के बारे में या प्रोसेसेस के बारे में. चिराग, I mean, Siren, Yes. anyone. So, what exactly is the process, Abhishek, and what exactly is the thread? अगर थ्रेड्स के बारे में पढ़ा है तो याद हो तो रिसेंटली एग्जाम दिया होगा. It will be good if anyone else could answer because I'm recording this point right now. Oh, okay, sure, no problem. हाँ, तो ओके, नो प्रॉब्लम. थ्रेड इज नथिंग बट देखो, मतलब जैसे कि हमने देखा कि एक प्रोसेस क्या होता है. प्रोसेस बेसिकली एक रनिंग इंस्टेंस है, ठीक है, एक एप्लीकेशन का. सिमिलरली एक प्रोसेस के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं. वो कंपोनेंट्स मैंने आपको दिखाया, कहाँ आप देख सकते हो. आप टास्क मैनेजर के अंदर देख सकते हो, बट टास्क मैनेजर आपको हर चीज नहीं शो करता, ठीक है. So what we can do, we can simply go to like the properties, and we will be able to see a lot of things. Like we will be able to see handles. एक handle table होता है, right? ये मैंने बताया. Okay. हम आएंगे इसके ऊपर, बट सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी होता है. ओके. एक प्रोसेस के पास उसकी खुद की एक मेमोरी होती है, ठीक है. एंड उसे ऐसा लगता है कि हाँ भाई, ये मेमोरी तो सिर्फ मेरे लिए ही है, ठीक है. ये एक इल्यूजन होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है, ठीक है. हमारे पास अगर मेरे सपोज मेरे सिस्टम में अगर 4 GB रैम है, या मेरे सिस्टम में अगर 8 GB रैम है, ठीक है. एंड अगर मेरे पास 32 बिट सिस्टम है, आजकल तो हम मतलब ऑफ कोर्स 64 बिट सिस्टम पे काम करते हैं. बट जब मेरे पास अगर मान लो 32 बिट सिस्टम्स हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इमेज के थ्रू, जस्ट अ सेकंड. ओके. सो सपोज, सो प्रोसेस मेमोरी, इसकी बात करते हैं एक्चुअली में. पहले थ्रेड पे बाद में आएंगे, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग. तो जब आप बेसिकली एक प्रोग्राम, सपोज देयर इज अ प्रोग्राम, जैसे मैंने फायरफॉक्स पे क्लिक किया, राइट. क्लिक करने के बाद आपने देखा कि प्रोसेस क्रिएट हुआ, राइट. एंड प्रोसेस क्रिएट होने के बाद क्या होगा कि एक प्रोसेस मेमोरी क्रिएट की जाएगी. ओके. एंड एक प्रोसेस मेमोरी क्रिएट जब होगा, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो प्रोसेस मेमोरी कहाँ से आएगा. वो प्रोसेस मेमोरी आएगा, लाइक आपको तो पता है कि हमारे सिस्टम में रैम होता है, राइट. एंड रैम इज लिमिटेड. Like suppose मेरे जैसे for in my system I have 8 GB of RAM. In your system it could be 16 GB or even 32 GB or 12 GB. Okay, so it really depends. तो क्या होता है कि ये जो प्रोसेस मेमोरी जो होता है ना, ये प्रोसेस मेमोरी हम एलोकेट कहाँ से करते हैं, वर्चुअल एड्रेस स्पेस से करते हैं एलोकेट, ठीक है. वर्चुअल एड्रेस स्पेस कुछ नहीं है. वर्चुअल एड्रेस स्पेस बेसिकली एक इल्यूजन है, एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वो चीज होती है जिसमें हम काम कर रहे हैं, राइट. विंडोज जैसे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम. तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास चीजें होती है, जैसे कि 2 GB रैम आपको दिख रहा है यहाँ पे. आई मीन 4 GB है एक्चुअली वर्चुअल एड्रेस स्पेस, ठीक है. तो 4 GB के अंदर यहाँ पे दो चीजें होती है, एक यूजर होता है, एक कर्नल होता है, ठीक है. डू यू guys have any idea about user and kernel, by the way? Anyone? If not, I'll explain that to you. यूजर एंड कर्नल के बारे में कोई आइडिया? ओके, I'm assuming it नहीं है, ठीक है. तो यूजर क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यूजर हूँ, ठीक है. एंड मैंने जैसे एप्लीकेशन पे क्लिक किया, ठीक है, यूजर एप्लीकेशन जैसे कि फायरफॉक्स. आई क्लिक्ड ऑन द एप्लीकेशन, एंड एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद वो चलने लगा, राइट. बट चलने के लिए उसको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, राइट. वो रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए? वो जैसे इसको नेटवर्क कम्युनिकेशन करना है, इंटरनेट को एक्सेस करना है, या उसे कुछ हार्डवेयर रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं, ठीक है. हो सकता है स्पीकर एक्सेस करना हो, कुछ भी एक्सेस करना हो, राइट. हो सकता है कुछ फाइल्स एक्सेस करने हो जो डिस्क पर रखे हुए हैं. तो वो फाइल्स को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, उसको कर्नल यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक बहुत लाइक समझ लो जनरल मैनेजर है, ठीक है. और वो जनरल मैनेजर का नाम क्या है? वो जनरल मैनेजर का नाम कर्नल है. तो हम क्या करते हैं, हम यूजर से कर्नल में ट्रांजिशन करते हैं, ट्रांजिशन. ओके. लाइक यूजर बोलेगा ठीक है, आई वांट दिस रिसोर्स, तो कर्नल के पास रिक्वेस्ट जाएगी, एंड कर्नल वो रिसोर्स उनको वापस देगी, ठीक है. तो जब हम बात करते हैं मेमोरी की, वर्चुअल एड्रेस स्पेस की, तो मेमोरी लिमिटेड होता है, ठीक है. अगर 4 GB मेरे पास है रैम, ठीक है, तो 4 GB रैम में जो 2 GB रैम होता है वो कर्नल रखेगा अपने पास, वो जनरल मैनेजर अपने पास वो रखेगा.
एंड बाकी का जो यूजर स्पेस का जो तुम्हारा होता है, यूजर के लिए जो रैम होता है वो 2 GB होता है, ठीक है। तो जब तुमने फायरफॉक्स ओपन किया, हमने अगर फायरफॉक्स ओपन किया, मैं यहाँ याद रखना हम 32 बिट सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। फायरफॉक्स को ओपन करने के बाद क्या होगा कि ये 2 GB जो है ना एलोकेट कर दिया गया फायरफॉक्स को। बट तुम अभी क्वेश्चन कर सकते हो कि भैया अगर ऐसी बात है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्रोम ओपन करता हूँ। ओके, लेट मी ओपन क्रोम, ठीक है। क्रोम डॉट एक्सी को ओपन करते हैं। अगर क्रोम डॉट एक्सी को ओपन करेंगे तो वहां पे भी सेम एक प्रोसेस क्रिएट होगा, राइट। एंड उसको भी क्या है कि एक प्रोसेस मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, राइट और रॉन्ग। हेलो, Yes. Yes, yes. राइट। सो सपोज अगर मैंने प्रोग्राम डॉट एक्सी को ओपन किया एंड एक प्रोसेस क्रिएट हुआ, सो यू सॉ इन दैट प्रोसेस आकर मैंने दिखाया कि एक प्रोसेस क्रिएट हुआ फायरफॉक्स को ओपन करने के बाद। सपोज दिस इज फायरफॉक्स, ओके, एंड दिस इज क्रोम। तो सिमिलरली यहाँ पे उसने एक प्रोसेस मेमोरी ली, मेमोरी टैब भी दिखाया मैंने। तो अगर मैं क्रोम ओपन कर रहा हूँ तो क्या होगा कि मेमोरी तो लिमिटेड है, राइट। मेमोरी तो मेरे पास सिस्टम में 4 GB है, राइट। एंड 4 GB में यूजर स्पेस के पास 2 GB भी है। बट अगेन इसको भी 2 GB एलोकेट किया जाएगा, इसकी प्रोसेस मेमोरी को। ऐसा होता है, ठीक है। बट लाइक दिस इज डेफिनेटली नॉट द ट्रूथ, दिस इज इल्यूजन। ओके, ये इल्यूजन होता है। एंड दिस मेमोरी इज नथिंग बट इट इज पेस्ट टू हार्ड डिस्क। ओके, मतलब होता क्या है कि wait, हमारे पास जो फिजिकल मेमोरी, हमारा जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो जो ये मेमोरी यहाँ पे दी गई है ना, ये मेमोरी बेसिकली यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी में मैप किया जाएगा, यहाँ पे कहीं, ठीक है। समझ रहे हो? तो कुछ ऐसा होता है, लाइक ऐसे मैपिंग की जाती है। बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीजें मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ मैं, बस अभी के लिए समझो कि अल्टीमेटली तुम्हें बस इतना याद रखना है फिलहाल के लिए कि एक प्रोसेस के पास एक वर्चुअल एड्रेस स्पेस होता है, उसकी खुद की एक मेमोरी होती है, ठीक है। उसी मेमोरी में वो अपने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे कि थ्रेड्स हो गया, टोकन हो गया, ये सारी चीजों को वो हैंडल करता रखता है, ठीक है। ओके, एक एग्जीक्यूटेबल इमेज जो हो गया, जैसे कि जो फायरफॉक्स डॉट एक्सी तुमने देखा, फायरफॉक्स डॉट एक्सी इज नथिंग बट द एग्जीक्यूटेबल इमेज। ओके, तो वो भी तुम्हारा यहीं पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नाउ ओके, सो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू। तो अगेन ये हमारा समझो क्या है, हमारा फिजिकल एड्रेस लाइक है, ठीक है। यहाँ हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम कुछ ऐसा ही दिखता है, राइट। रैम की स्टिक देखी है क्या तुम लोगों ने कभी? किसने देखी है रैम की स्टिक यहाँ पे कभी पहले? हाँ, मैंने देखा है। हाँ, तो रैम हाँ का हाँ स्टिक कुछ देखा ऐसा ही दिखता है ना, हाँ, हाँ, ऐसा ही दिखता है ना। हाँ। यस एग्जैक्टली। तो अल्टीमेटली जितने भी प्रोसेसेस चलेंगे कहाँ चलेंगे, लाइक रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, राइट। रैम इज व्हाट, इज अ वोलेटाइल मेमोरी। तो जितने भी अल्टीमेटली प्रोसेसेस चल रहे हैं वो कहाँ चलेंगे, वो तो मेमोरी कंज्यूम करेंगे ना, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में चलेंगे, राइट। राइट, Yes, yes. यस। सो सिमिलरली अगर कोई प्रोसेस वन है, जैसे कि सपोज ये क्रोम है हमारा, दिस इज क्रोम, दिस इज फायरफॉक्स एंड दिस इज एनी लाइक एनी प्रोसेस, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रोसेसेस मैं चला रहा हूँ अपना यहाँ पे, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होगा कि अलग अलग यहाँ पे इसको मेमोरी दी जाएगी, एलोकेट किया जाएगा, सबकी एक सेपरेट मेमोरी होगी, राइट। सबकी क्या है, यहाँ पे एक सेपरेट मेमोरी है। ये इसका वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, ये इसका वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, ये इसका वर्चुअल एड्रेस स्पेस है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। सिमिलरली अब क्या है कि लाइक अब हम प्रोसेस इंजेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग इनटू प्रोसेस इंजेक्शन नाउ। प्रोसेस इंजेक्शन का मतलब क्या? अभी हमने प्रोसेस के बारे में समझा कि प्रोसेस इज नथिंग बट अ रनिंग इंस्टेंस ऑफ एन एप्लीकेशन एंड दैट एप्लीकेशन कंटेन्स a lot of resources. It has its own virtual address space, right? Which is nothing but like container like thing, okay? And that container contains all the data, right? So प्रोसेस इंजेक्शन का मतलब क्या है? प्रोसेस इंजेक्शन का मतलब क्या है कि सपोज मैंने सिस्टम में अपना खुद का एक प्रोसेस स्टार्ट किया, ठीक है। मतलब मैंने एक मैलवेयर एग्जीक्यूट किया सपोज, ठीक है। मैंने एक मैलवेयर एग्जीक्यूट किया, ये अटैकर प्रोसेस है, ठीक है। एंड ये अटैकर प्रोसेस का काम क्या रहेगा कि जो कोई सिस्टम में और कोई प्रोसेस अगर चल रहा है, जैसे कि फायरफॉक्स चल रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फायरफॉक्स के प्रोसेस मेमोरी में जाएगा, कुछ कोड डालेगा, ठीक है, कुछ मलिशियस कोड डालेगा एंड उसको एग्जीक्यूट करेगा। आ रहा है समझ? मतलब मान लो यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसको समझो कि हमारे हमने फिर से यहाँ पे कोई अटैकर कोई प्रोसेस स्टार्ट किया, उसका अपना खुद का एक वर्चुअल एड्रेस स्पेस होगा, क्योंकि हर प्रोसेस का अपना खुद का एक वर्चुअल एड्रेस स्पेस होता है, ओके। देन ऑलरेडी सिस्टम में कई सारे प्रोसेसेस चलते हैं, यू कैन सी दैट, ओके। Okay. Already there are a lot of system processes running. Okay, you can see there is CSRSS, Firefox, okay, Explorer.exe, and अगर मैं यहाँ पे suppose CMD भी open कर दूँ, CMD, spoiler,
मेरा वीएम को क्या हुआ? चल जाओ यार, जस्ट अ सेकंड गाइस। I need to upgrade my RAM actually. Okay, so let's go to command prompt. Yep. So again, कमांड प्रॉम्प्ट ने भी क्या हुआ, अपना एक प्रोसेस क्रिएट किया, ठीक है। अगर मैंने ओपन किया यहाँ पे, कैन सी मैंने सीएमडी, एक चीज तुमने सुनी तो जरूर होगी, राइट? सीएमडी। तो यहाँ पे कोई टूल है जो मैंने स्टार्ट किया, एंड ऑफ कोर्स यू कैन सी दैट इट हैज स्टार्टेड अ प्रोसेस ओवर हियर, राइट? सो ऐसे कई सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, राइट? सिमिलरली यहाँ पे कई सारे प्रोसेसेस जो हैं चल रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो ये सीएमडी हमारा है, जो ये एक मलिशियस प्रोसेस था जो मैंने स्टार्ट किया। ये क्या करेगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल फायरफॉक्स का प्रोसेस है, ठीक है। फायरफॉक्स के प्रोसेस को एक्सेस करेगा, इसके मेमोरी में जाएगा। ओके, यू कैन सी दैट इट हैज अ मेमोरी टैब। ओके, वेयर इज मेमोरी? मेमोरी टैब, यस। ओके, दिस इज द मेमोरी टैब। यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेमोरी में भी ऑफ कोर्स तुम्हारे प्रोटेक्शंस है, देख रहे हो? प्रोटेक्शन, रीड राइट, रीड राइट, रीड राइट। यहाँ पे रीड एग्जीक्यूटेबल मेमोरी प्रोटेक्शंस है, देख रहे हो? ये RW का मतलब होता है रीड एंड राइट। यहाँ पे तुम मेमोरी में रीड कर सकते हो या राइट कर सकते हो। यहाँ पे रीड भी कर सकते हो एंड एग्जीक्यूट कर सकते हो, समझ रहे हो? एक्स का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना। तुमने अगर लिनक्स थोड़ा बहुत भी सीखा है तो वहाँ पे RWX के बारे में सुना होगा, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पे मेमोरी में भी परमिशंस होते हैं कि आप इस मेमोरी रीजन में क्या क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी रीजन्स है, ठीक है। एंड इन डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी रीजन्स में अलग अलग परमिशंस है, रीड एंड एग्जीक्यूट, रीड एंड राइट, ऐसे कई सारे परमिशंस हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये फायरफॉक्स का प्रोसेस है सपोज, ठीक है, यहाँ पे इस प्रोसेस को एक्सेस करना है। एक्सेस करने के बाद यहाँ पे इसके मेमोरी को कुछ कुछ मेमोरी एलोकेट करना है इस मेमोरी एड्रेस स्पेस में, ठीक है। यही यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कुछ दिक्कत किसी को? भैया आप वापस से समझा सकते हैं क्या? या श्योर 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 श्योर। कहाँ से समझाऊं, बताओ एक बार। वही वो प्रोसेसेस में वो उस मतलब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जो अटैकर प्रोसेस है वो लाइक उसके वर्चुअल एड्रेस स्पेस में स्पेस क्रिएट मतलब जाएगा और उसके बाद वहां पे इट विल ट्राई टू इंस्टॉल सम Yes, लाइक it will try malicious to write. activity. It will try to अच्छा write something code. Exactly, exactly, अच्छा exactly, exactly. Okay, you actually got it right. Okay. ओके तो ओके यहाँ पे सेम चीज हो रहा है, बट हाउ विल डू दैट? लाइक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर एक अटैकर को एक लेजिटिमेट प्रोसेस जो है, लाइक तुम बोलो से क्वेश्चन कर सकते हो ना, वन क्वेश्चन शुड कम, एंड यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भैया पर ऐसा हो क्यों रहा है, लाइक व्हाई डू वी नीड दैट? एक अटैकर को किसी दूसरे प्रोसेस को एक्सेस करने की जरूरत क्या है? यस, मैं कर दूंगा बाद में, मैं आता हूँ, आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट। ओके, हाँ तो बताओ मुझे जरा कि ऐसा क्या जरूरत पड़ रहा है कि एक अटैकर को एक लेजिटिमेट प्रोसेस को एक्सेस करने की जरूरत पड़ रही है? व्हाई व्हाई आर वी डूइंग दिस? एनीवन? व्हाई आर वी डूइंग दिस? हेलो, एनीवन? नो वन? ओके, बेसिकली डिफेंस इवेजन। सो माइटर एक फ्रेमवर्क है, डेफिनेटली तुम्हारा माइटर बेसिकली एक भैया भैया ऑर्गेनाइजेशन भैया है। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू बट ये क्या मतलब ऐसा है क्या लाइक मेरे दिमाग में आ रहा था ये कि शायद वो इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि व्हाट प्रोसेस दैट अटैकर इज रनिंग उसका सोर्स किसी को ना पता चले लाइक इट इज बेसिकली ट्राइंग टू वो बोलते हैं ना किसी किसी का आड़ पे छुप के कोई काम करना काइंड ऑफ हाँ, गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एग्जैक्टली, इसलिए इसे डिफेंस इवेजन कहते हैं। तो लाइक माइटर क्या है? माइटर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस बेस्ड है, ठीक है। एंड वो ऐसे ही कई सारे तुम्हारे डिफेंस इवेजन टेक्निक्स का एक पूरा लिस्ट तुम्हारा मेंटेन करता है, ठीक है। एंड अंडर डिफेंस इवेजन, तो डिफेंस इवेजन क्या है? डिफेंस इवेजन टेक्निक्स होती हैं जो अटैकर्स यूज करते हैं टू अवॉइड डिटेक्शन थ्रू आउट देयर कंप्रोमाइज। यानी कि अगर मैं नॉर्मली कोई रैंडम सा प्रोसेस स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, अपने सिस्टम के अंदर, तो जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होगा वो डिटेक्ट कर लेगा, उसको बहुत कुछ रैंडम दिखेगा, ठीक है। बट अगर कोई ऐसा प्रोसेस मैं यूज करूँ जो सिस्टम में ही एग्जिस्ट करता है पहले से, जो सिस्टम का ही प्रोसेस है,
और मैं उस सिस्टम के प्रोसेस से ही वो काम करवा दूं, तो फिर एंटीवायरस भी समझ नहीं पाएगा ना। ऑल्दो आजकल एंटीवायरस डिटेक्ट कर लेते हैं प्रोसेस इंजेक्शन को, बट ऐसा होता है, समझ रहे हो ना? ओके, सो दैट वाज हाँ एक्चुअली टेक्निक। सो एग्जैक्टली तो अंडर ये डिफेंस डिवीजन के अंदर अगर कंट्रोल एफ करके मैं सर्च करूं प्रोसेस इंजेक्शन, ठीक है, तो यू कैन सी लाइक यहाँ पे एक आईडी भी रहती है T1055, ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी है, ओके, फॉर प्रोसेस इंजेक्शन। तो यहाँ पे प्रोसेस इंजेक्शन क्या है, एक डिफेंस इवेजन टेक्निक का पार्ट है, जो कि एडवर्सरीज जो यानी कि तुम्हारे जो अटैकर्स होते हैं, अटैकर्स होते हैं, वो यूज करते हैं इस टेक्निक। ये एक एडवांस, इसे एक एडवांस टेक्निक कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स एडवर्सरी में इंजेक्ट कोड इनटू प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू इवेड प्रोसेस बेस्ड डिफेंसेस, राइट, एंड पॉसिबली एलिवेट प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है ना, देखो हर प्रोसेस जो है ना अपने खुद के प्रिविलेज लेवल पर रन कर रहा होता है, ठीक है, हर प्रोसेस का अपना खुद का एक प्रिविलेज लेवल होता है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर इफ टोकन में यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी इंटीग्रिटी लेवल, यस इंटीग्रिटी, ओके। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे देख रहे हो, ये मीडियम दिखा रहा है यहाँ पे। तो हर प्रोसेस की अपनी खुद की एक इंटीग्रिटी लेवल होती है, क्या वो हाई है, सिस्टम है, प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो हाई सिस्टम प्रोटेक्टेड जो तुम देख रहे हो ना, ये सादा हो गया, ठीक है। अरे ओके, मैं जूम नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, नो इश्यूज। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये मीडियम इंटीग्रिटी लेवल पे चल रहा है, तो हर प्रोसेस की इंटीग्रिटी लेवल है। तो अगर मुझे एज एन अटैकर किसी प्रोसेस को एक्सेस करना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो हाई सिस्टम प्रोटेक्टेड या मीडियम इंटीग्रिटी लेवल पे हो। मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे लो या अनट्रस्टेड प्रोसेस का कैटेगरी मिले। एंटीवायरस क्या करेगा, रैंडम प्रोसेस को अनट्रस्टेड इंटीग्रिटी में डाल देगा, एंड ऑफ कोर्स इट विल डिटेक्ट दैट इट्स अ malicious प्रोसेस, राइट, इट विल नॉट ट्रस्ट दैट। तो हमारा मोटिव ही है कि हम कुछ क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोसेसेस का इस्तेमाल करें जो बेसिकली हमारा काम कर जाए, ओके। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये डायग्राम है जो मैंने एआई से जनरेट करवाया था। ऑफ कोर्स we want to inject code into like the legitimate process. That's what our idea is, okay. I hope you understood like how basically we are going to do this, right? Yes. हाँ भैया। Yes. Okay, perfect. So basically now the point is of course हम यहाँ पे एक डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बट ये करेंगे कैसे, लाइक अगर अटैकर्स कर रहे हैं ऐसा तो कैसे करते हैं, how they are able to do it, that's what the question is, right? If an attacker is able to do process injection, how they are able to do it? They're able to do it by using the Windows API functionalities, okay. So what is Windows API? यहाँ पे सबसे important सवाल ये आता है, Windows API होता क्या है? क्या किसी ने API के बारे में सुना है? Like, do you guys know about API or application programming interface? Do you guys have any idea about application programming interface, API? No, bro, I don't have. Okay, anybody else? Sarim? What is Windows API? What is application programming interface? API होता क्या है? थोड़ा बताओ। कोई ऐसा फंक्शन जो हम लोग दूसरे क्रिएटेड चीज से ले सके, जैसे कोई जेमिनी का एपीआई है जो हम लोग एलएलएम का यूज कर सकते हैं, जेमिनी का उस एपीआई के यूज से। ऐसा। राइट एग्जैक्टली, जैसे कि जेमिनाई के फंक्शनैलिटीज को यूज करने के लिए आप जेमिनाई का एपीआई यूज करते हो, राइट, या Yes. लाइक आपको मॉडल में इंटीग्रेट करने के लिए कुछ भी, राइट, जो भी है, चैटबॉट बनाने के लिए फॉर एग्जांपल। इन अ सिमिलर फैशन, जैसे जेमिनाई का एपीआई होता है, वैसे ही सिस्टम में भी कई सारे एपीआई कॉल्स होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर सपोज मुझे कोई भी टास्क कराना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे फाइल है, ओके, यू कैन सी दैट, अगर मुझे सपोज फाइल ओपन करना है, आई वांट टू ओपन अ फाइल, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइल ओपन करने के लिए, फाइल कहाँ है, फाइल तो ऑफ कोर्स मेरा यहाँ पे सिस्टम में रखा हुआ है, राइट, फाइल मैनेजमेंट यहीं पे हो रही है सिस्टम के अंदर कहीं, ठीक है। तो तुम डायरेक्टली सिस्टम के रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द सिस्टम रिसोर्सेज, ओके। आपको एक मीडियम से जाना पड़ेगा, एंड दैट मीडियम इज नथिंग बट विंडोज एपीआई। आपको एपीआई का यूज करना पड़ेगा। You cannot access these resources. These are system protected resources, और हाई लेवल पे, लाइक काफी लो लेवल पे चीजें हैं, ये हार्डवेयर रिसोर्सेज है, आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एपीआई यूज करना पड़ेगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस करना पड़ेगा यूज, ठीक है। विंडोज में भी होता है ये, ठीक है, लिनक्स में भी होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम विंडोज एपीआई का इस्तेमाल करेंगे, एंड विंडोज एपीआई का इस्तेमाल करके सिस्टम कॉल्स करेंगे, ओके, वी विल बी डूइंग सिस्टम कॉल्स, एंड सिस्टम कॉल्स का यूज करके हम क्या करेंगे, फाइल का एक्सेस करेंगे डायरेक्ट। आया समझ में? सिमिलरली अगर मुझे फॉर एग्जांपल आई वांट टू क्रिएट अ प्रोसेस, तो मैं क्या करूंगा, मैं विंडोज एपीआई का यूज करूंगा। विंडोज एपीआई का यूज करके मैं क्या करूंगा, मैं एक प्रोसेस को क्रिएट करूंगा, ओके, प्रोसेस के लिए कुछ और होगा,
समझ रहे हो ना बात यहाँ पे क्या हो रहा है? विंडोज एपीआई इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यही हमारा एक मिडिल मैन है, ऐसे समझो, इट्स अ मिडिल मैन। जो भी करना है हमें इसी के थ्रू करना है, ठीक है। एंड दीज एपीआईज आर नथिंग बट फंक्शंस। ओके, ये एपीआईज कुछ नहीं होते बट फंक्शंस होते हैं एक तरीके से। तुम लोगों को फंक्शंस के बारे में तो पता होगा ना, फंक्शंस क्या होते हैं? व्हाट आर फंक्शंस? व्हाट रियली आर फंक्शंस? I mean, it helps us to execute a specific task. Exactly. For example, if I want to print something on screen, okay, then for example, if I'm writing some C code, okay, अगर मैं C का ही कोड लिख रहा हूँ एंड मुझे सपोज स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करवाना है, तो क्या बोलोगे भैया? आप क्या लिखो, बताओ मुझे, क्या करेंगे? ये कौन सा बताओ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल सी ही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? प्रिंटफ का यूज करूंगा एंड प्रिंटफ करके मैं क्या करूंगा? मैं हेलो वर्ल्ड यूज करूंगा, राइट? ओह हाँ हाँ। लाइक वेरी सिंपल, राइट। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स इस कोलन को इग्नोर करना गलत है, इसको भी इग्नोर करना, बट हाँ डजंट मैटर। यहाँ पे द थिंग इज कि ये प्रिंटफ जो है, प्रिंटफ एक फंक्शन है, ठीक है। प्रिंटफ इज अ फंक्शन। प्रिंटफ एक फंक्शन है जो ऑलरेडी सिस्टम में प्रेजेंट है, ठीक है, और हम इसको कॉल कर रहे हैं डायरेक्टली, समझ रहे हो? जिसका काम है एक्चुअली स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करवाना। इन अ सिमिलर वे देयर आर फंक्शंस टू क्रिएट फाइल। क्रिएट फाइल क्रिएट करने के लिए भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है। देयर आर फंक्शंस टू एक्चुअली ओपन प्रोसेस, ओके, एंड यही नाम ही है, ओपन प्रोसेस ही नाम है उसका, ठीक है। विंडोज की बात कर रहा हूँ। देयर आर फंक्शंस टू एक्चुअली लाइक एलोकेट मेमोरी इनसाइड अ प्रोसेस, तो हम वर्चुअल अलॉक करते हैं, वर्चुअल अलॉक, ठीक है। वर्चुअल अलॉक का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? एक प्रोसेस के, जैसे कि तुमने याद करो, एक अटैकर का कंटेनर, एक नॉर्मल कंटेनर, उसमें हमने एक मेमोरी एलोकेट की थी, राइट? वी एलोकेटेड सम मेमोरी, इफ यू रिमेंबर। तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक फंक्शन का यूज करेंगे। क्या फंक्शन? वर्चुअल अलॉक, ठीक है। अगर एक बार अब मैंने अगर वर्चुअल अलॉक यूज कर लिया, ठीक है, इफ आई यूज वर्चुअल अलॉक, ठीक है, एक अटैकर ने क्या किया कि एक नॉर्मल प्रोसेस में, दिस इज अटैकर प्रोसेस, दिस इज नॉर्मल प्रोसेस, उसने क्या किया? उसने मेमोरी एलोकेट कर दिया। कैसे एलोकेट किया? बाय यूजिंग द वर्चुअल अलॉक फंक्शन, ठीक है। ओके, इसका नाम ही है वर्चुअल अलॉक, ठीक है। एक बार अगर एलोकेट हो गया तो मैं नेक्स्ट चीज क्या करना चाहूंगा? द नेक्स्ट थिंग व्हिच आई वांट टू डू इज आई एक्चुअली वांट टू राइट समथिंग, राइट? मुझे अब कुछ, अगर क्योंकि अब मुझे कुछ लिखना है इसके अंदर, मैं क्या लिखूंगा? मैं आई वांट टू राइट, तो राइट राइट प्रोसेस मेमोरी फॉर एग्जांपल, कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। राइट प्रोसेस मेमोरी करके कोई फंक्शन हो, क्या पता, राइट? बट एक बार मैंने लिख दिया, मैंने एक बार कोड भी लिख दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज मैं क्या करना चाहूंगा? आई वांट टू एग्जीक्यूट इट, राइट? एक बार मैंने एलोकेट कर दिया मेमोरी यहाँ पे, और एक बार मैंने कुछ अपना मलिशियस कोड लिख दिया यहाँ पे। द नेक्स्ट थिंग व्हिच आई वांट टू डू इज बेसिकली आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस कोड, राइट? मुझे इसे एग्जीक्यूट भी तो करना है। अल्टीमेटली एक मैलवेयर ऑथर का, एक थ्रेट एक्टर का गोल क्या होता है? दे वांट टू एग्जीक्यूट द कोड, isn't it? So if I want to execute the code, what I'll do, I will call something called as create remote thread. Create remote thread. And by the way, तुमको अगर अब यहाँ पे thread का concept समझ आएगा, thread is nothing but thread is the unit of execution inside a process. Thread का काम होता है प्रोसेस के कोड, लाइक जो कोड होता है उसको एग्जीक्यूट करना, ओके। प्रोसेस एक कंटेनर की तरह होता है जिसके अंदर कई सारे रिसोर्सेज होते हैं, कोड होता है एंड थ्रेड्स भी होता है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन थ्रेड्स का काम क्या होता है? जो प्रोसेस के अंदर जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करना। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? So threads क्या? Threads basically they are like workers. So again, we used virtual alloc function to allocate the memory, right? हमने attacker ने क्या किया? Virtual alloc functionality का use किया, and functionality का use करके उसने एक legitimate process के अंदर एक memory region allocate किया. Then there is a function called write process memory. A write process memory can copy data from the source of the process to the allocated space. So we basically did what? Attacker ने एक write process memory function का use किया, and write process memory function का इस्तेमाल करके it has written some code inside the allocated memory space. Then I said that we want to execute the code. Okay, if you want to execute the code, what we can use? We can use a function called create remote thread, or there is another function called set windows hook. Okay, ये नाम है, okay, नाम से doesn't matter. printf अगर हमने पढ़ा है printf से प्रिंट करते हैं तो हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि भाई printf ही नाम क्यों है, राइट? तो ऐसे ही नाम में ये डेवलपर्स की चॉइस थी कि उन्होंने ये नाम रखा. वी डोंट नो दैट व्हाई एग्जैक्टली दे हैव रिटन दिस नेम. ओके, बट ऑफ कोर्स ये काफी ज्यादा
समझ में भी आता है कि राइट प्रोसेस मेमोरी, क्रिएट वर्चुअल अलॉक, कुछ एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है, नाम से समझ में भी आ जाता है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मेनी टाइम्स यू वोंट बी एबल टू गेट इट दैट व्हाई दे आर डूइंग दिस। ओके, व्हाट इज लाइक नेम एंड वर्क शुड डिफर। ओके ओके, इतना दूर तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट्स अभी तक? ये लास्ट वाला स्टेप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, क्रिएट रिमोट थ्रेड वाला। ओके, हाँ उसी पे आते हैं। तो थ्रेड को तुम क्या करो, वर्कर्स की तरह इमेजिन करो। ओके, थ्रेड्स क्या होता है, वर्कर्स की तरह होता है। अगर एक बेसिकली एक पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर तुम्हें कुछ काम करना है, तो काम करवाने के लिए तुम्हारे पास थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। थ्रेड्स क्या है, थ्रेड्स वर्कर की तरह होते हैं। हर प्रोसेस के पास थ्रेड्स होते हैं, एक से ज्यादा थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे अगर मुझे सपोज सीएमडी के अंदर जाना है, प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है, एंड मुझे यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे थ्रेड्स का भी ऑप्शन होगा। क्या है यहाँ पे, थ्रेड्स देख रहे हो, थ्रेड्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक थ्रेड, सिर्फ एक ही थ्रेड है यहाँ पे, ओके, एंड इसकी प्रायोरिटी भी कुछ है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे सीएमडी के पास एक वर्कर है, बट इफ आई गो टू लाइक फायरफॉक्स फॉर एग्जांपल, अगर मैं फायरफॉक्स पे क्लिक करूँ, गो टू प्रॉपर्टीज एंड गो अगेन टू लाइक थ्रेड्स, तो यहाँ पे देखो इसके पास कितने सारे थ्रेड्स हैं, कितने सारे वर्कर्स हैं, क्योंकि फायरफॉक्स एक बहुत ही हाई इंटेंसिव ऐप है, बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है चीजें, तो इसको बहुत ज्यादा थ्रेड्स की जरूरत होती है। सो एवरी प्रोसेस हैज एटलीस्ट वन थ्रेड, ओके, एटलीस्ट एक थ्रेड तो होता है, एक वर्कर तो होगा ही भाई उसके पास, वरना उसके पास तो भाई किसी किसी केस में तो भाई 60, 60, 70, 100 भी थ्रेड्स होते हैं, 200 भी होता है। ओके, तो ये सारे के सारे वर्कर्स हैं, जिनका देख रहे हो, वर्कर्स की तरह इमेजिन करो। तो क्रिएट रिमोट थ्रेड क्या करेगा, क्रिएट रिमोट थ्रेड कुछ नहीं करेगा, इट विल एक्चुअली एक नया वर्कर क्रिएट करेगा। ये इट्स लाइक कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कोई जासूस भेज दिया अपना, जो मेरे लिए काम करेगा, समझ रहे हो ना। या गॉट इट। यस, सो इन अ सिमिलर वे हम क्या करेंगे, इसी वर्कर का इस्तेमाल करके अपना कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। हम बोलेंगे भाई तुम लोग बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना है, ओके, हम खुद का आदमी भेजेंगे और उसी से अपना काम करवा लेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस बेसिकली, दिस इज हाउ वी एक्चुअली डू इट। तो तुम इसको कोड भी कर सकते हो, देयर आर डेफिनेटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। हाउ मेनी टेक्निक्स आर देयर, प्रोसेस इंजेक्शन लाइक डीएल इंजेक्शन टेक्निक होता है, प्रोसेस फॉलोइंग होता है, पोर्टेबल एग्जीक्यूशन इंजेक्शन होता है, सिम इंजेक्शन होता है। And now I would like to share a resource. So there is a GitHub repository called Crow, okay, and इसने इसका एक YouTube चैनल भी है प्रोसेस इंजेक्शन के ऊपर। I mean एक YouTube चैनल है, मतलब जहाँ पे उन्होंने बहुत ही प्यारा वीडियो डाला हुआ है प्रोसेस इंजेक्शन के ऊपर, okay, and you can go to his repository called maldev development, okay, like ये malware development का पार्ट है, this how we develop malwares, okay, but by the way I'm not into malware development, मैं ज्यादा डेवलपमेंट में हूँ, ठीक है। माय वर्क इज ऑन ब्लू टीमिंग, तो मैं ब्लू टीमिंग के पर्सपेक्टिव से ही बताऊंगा। आ जा यार, वेट जस्ट अ सेकंड, माय इंटरनेट सक्स। ओके, सो अभी तक कोई डाउट किसी को? आई होप यू गाइस आर गुड टू गो, राइट? ओके, सो यहाँ पे डीएल इंजेक्शन है, लेट्स गो टू injection.c, ठीक है। ये एक्चुअली एक कोड है, ठीक है, एक मैलवेयर का कोड है, ठीक है, जो लिखा गया है। एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स हम पूरा सब कुछ नहीं समझेंगे, बट आई वांट टू शो द सिमिलैरिटी, ओके, कि हाउ दिस इज वर्किंग, ओके। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हम डीएल इंजेक्शन कर रहे हैं। डीएल का मतलब होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। जैसे कि लाइब्रेरी कुछ नहीं होता, जैसे हमारे कॉलेज में अगर लाइब्रेरी है, उसके अंदर हमें बहुत सारे बुक्स मिलते हैं, राइट। तो अगर हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी है और हर बुक्स में हमें बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नॉलेज मिलता है, एंड उससे हम एक डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सिमिलरली विंडोज के अंदर तुम्हारे डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज होते हैं, जिसके अंदर कई सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे तुमने देखा कि ये जो तुमने वर्चुअल अलॉक फंक्शन देखा, ये जो तुमने अभी क्रिएट प्रोसेस फंक्शन देखा, तुमने अभी क्रिएट रिमोट थ्रेड देखा, ये सारे फंक्शंस हैं। ये सारे के सारे फंक्शंस तुम्हारे एक डीएल के अंदर आते हैं। तो अटैकर लोग क्या करेंगे, वो लोग बोलेंगे ठीक है यार, मैं इंटरनल फंक्शंस यूज नहीं करूंगा, मैं सिस्टम के अंदर के फंक्शंस को यूज नहीं करना चाहता, मैं अपना खुद का एक डीएल डाल देता हूँ जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होंगे, एंड फिर मैं उस डीएल को यूज करूंगा, ठीक है। इट्स लाइक समझो कि डीएल क्या होता है, डीएल एक लाइब्रेरी की तरह होती है जिसके अंदर कई सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे हो सकता है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस, हंड्रेड्स भी हो सकता है, ठीक है। तो हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस एक्चुअली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे के पूरे ये जो डीएल है ना, ये जो डीएल
हम इस पूरे के पूरे डीएलएल को क्या कर सकते हैं, एक प्रोसेस के अंदर लोड कर सकते हैं। समझ रहे हो? मैं बोल सकता हूँ कि ये काम करो, ये लेजिटिमेट प्रोसेस जो है यहाँ पे, जो कि मैं ब्लू से शो कर रहा हूँ, इसके अंदर पहले मेमोरी एलोकेट करो एंड इस डीएलएल को इस मेमोरी के अंदर डाल दो। इसे कहते हैं डीएलएल इंजेक्शन। ठीक है, डीएलएल क्या होता है? डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस तो पता ही है क्या होता है। तो इन फंक्शंस ये लेकिन रेड से क्यों इंडिकेट किया? क्योंकि ये मेरे बनाए हुए फंक्शंस हैं, ये मलिशियस फंक्शन जो कुछ गलत काम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे डीएलएल इंजेक्शन भी किया जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोसेस इंजेक्शन टेक्निक्स। आई जस्ट वांट टू शो यू द फंक्शंस वी शुड टॉक अबाउट। वर्चुअल अलॉक याद है क्या? मैंने बात कहा था ना, वर्चुअल अलॉक यूज करेंगे। ओके, हमें बस ऊपर ऊपर से देखना है, ऑफ कोर्स पूरा डिटेल में नहीं जाना चाहते, वी डोंट वांट टू गो इन डिटेल। वर्चुअल अलॉक से मेमोरी एलोकेट किया गया। ठीक है, यहाँ पे तुमने देखा राइट प्रोसेस मेमोरी भी दिखा हमको। यहाँ पे हमको दिख रहा है क्रिएट रिमोट थ्रेड एट द सेम टाइम। यानी कि फंडामेंटल्स अगर चेक किया जाए, ठीक है, इफ यू गो टू द फंडामेंटल्स, there are three fundamentals actually, fundamental pillars of process injection. We want to allocate memory, we want to write onto that memory, and then we want to execute. And हर process injection में तुम्हें ये pattern दिखेगा. Okay? Okay, guys. हाँ भैया। अबे अभी अभी तक सब फॉलो कर पा रहे हैं ना, या किसी को कहीं पर डाउट है या लग रहा है कि कुछ रिपीट करना चाहिए? हाँ, ऑफ कोर्स, आई मीन उसके ऑफ कोर्स यहाँ पे नहीं ऐसी बात नहीं है। लोड, एक लोड लाइब्रेरी करके फंक्शन आता है, उससे तुम कर सकते हो लोड। विल गेट इनटू दैट, वो थोड़ा डिफरेंट वे में चला जाएगा। ओके, तो यस, हाँ, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स अब हम बेसिकली जाना चाहते हैं, इसके बाद छोड़ते हैं, ये डिफरेंट चीज़ है। मैं यहाँ पे एक रियल वर्ल्ड, एक्चुअली मैं पहले सोच रहा था कि तुम लोगों को मैं मैलवेयर दूं, बट आई गेस दैट वुड नॉट बी अ गुड थिंग, क्योंकि ये बहुत डेंजरस मैलवेयर है। ओके, मैं नहीं चाहता तुम लोग अपना सिस्टम इन्फेक्ट कर लो। ओके, आई गेस सो। डू आई हैव द मैलवेयर? जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। अभी तक किसी को कुछ डाउट या कुछ? नो भैया डाउट्स? आप डीएलएल इंजेक्शन के बारे थोड़ा और बता सकते हैं क्या? मैं तुमको डीएल इंजेक्शन के बारे में और बताऊं? अच्छा, ठीक है, रुक जाओ, पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, वो दिखाने के बाद बात करेंगे इसको। रुको, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। हाँ, जस्ट अ सेकंड, गिव मी 1 मिनट। ओके। ओके, या सो yes, so okay, now we learned about the process injection function flow, right? So of course I told you about these things. Okay, just a second. Yeah, just a second.
सॉरी यार, कोई आ गया था। हाँ, okay, yes, so we were there actually at the process injection flow. Okay, so yeah, DLL injection is one of a kind. Okay, उस पे हम आएंगे बाद में, बट अभी के लिए फिलहाल हमें जो समझना है ओवरऑल जो फ्लो होता है प्रोसेस इंजेक्शन का, कि हमको सबसे पहले जब अगर हम एक मैलवेयर एग्जीक्यूट कर रहे हैं सिस्टम में, ठीक है, इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग अ मैलवेयर इन अ सिस्टम, तो अगर सपोज मैंने एक सिस्टम में मैलवेयर एग्जीक्यूट कर दिया, तो मेरा पहला टास्क क्या होगा, मुझे देखना है कि सिस्टम के अंदर कितने प्रोसेसेस चल रहे हैं, ठीक है, कौन I would like to list all the processes which are running inside a system. I want to list them all. कैसे लिस्ट करेंगे? यूजिंग दिस functionality called create tool help 32 snapshot or enum processes. Okay, this will be used to get the list of running processes. Now I want to see कि of course हमें alive processes, जो processes अभी चल रहे हैं उनमें उनमें ज्यादा इंटरेस्ट है हमारा, ठीक है। of course there are two possible ways. एक हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि आइदर हम क्या कह सकते हैं कि लिस्ट करो सारे के सारे प्रोसेसेस को, लिस्ट ऑल द प्रोसेसेस, ठीक है, एंड सारे के सारे प्रोसेसेस को लिस्ट करने के बाद हो सकता है कि मैं एक काम करूं कि मैं इस प्रोसेस को चूज कर लूं एंड यहाँ पे इंजेक्शन करूं, ठीक है, या एक काम कर सकते हैं कि हम एक खुद का नया प्रोसेस ही क्रिएट कर देते हैं, लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोसेस एंड उस प्रोसेस को क्रिएट करके उसके अंदर कुछ डाल देते हैं, तो ये भी किया जा सकता है, बट हम जो चीज देख रहे हैं हम ऑफकोर्स जो एक्सिस्टिंग प्रोसेसेस चल रहे हैं हमारे सिस्टम में हम उस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली सारे के सारे प्रोसेसेस को लिस्ट किया एक सिस्टम के अंदर, जैसे तुमने अभी देखा था इसके थ्रू, प्रोसेस हैकर के थ्रू, राइट, कि जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं यहाँ पे हम लिस्ट करके देख पा रहे हैं। सिमिलरली एक फंक्शन का यूज करके आप देख सकते हैं। देन वी वांट टू ओपन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। ओके, सो एक बार हमने उस प्रोसेस को ओपन कर दिया, अब हम क्या करना चाहते हैं, उसमें हम एलोकेशन करना चाहते हैं, फिर हम उसके अंदर राइट करना चाहते हैं, एंड देन वी वांट टू एग्जीक्यूट, राइट। सो आई होप ये जो फ्लो है ये तुम्हें समझ में आया, राइट, कि ये फ्लो होता कैसे है। होप सो। हेलो। Yes. Okay, perfect. So now, of course, as an analyst, okay, as security specialist, not specialist, sorry, I'm not a specialist, guys. See, by the way, I want to say one thing. See, guys, I'm a very beginner, I'm a college student, okay, and these topics are quite advanced, you can say. So of course I'm a beginner, and maybe there are ways in which I can say these things could be explained in a much better way, okay, but शायद मैं उतना हो सकता है कहीं पे कुछ गलती कर जाऊं, तो ऑफ कोर्स जहां लगे आई एम ओपन फॉर लाइक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। ओके, सो हाँ चलो, सो वी वांट टू डिटेक्ट द प्रोसेस इंजेक्शन टेक्निक्स। तो देखो हम ऑफ कोर्स एक डिफेंसिव पर्सपेक्टिव से ही देख रहे थे, मैंने ऑल्दो आपको यहाँ पे कोड दे दिया है, यहाँ पे आप जा सकते हो एंड खुद की लाइक चीजें कर सकते हो। ओके, यूट्यूब पे आप वीडियो देखना क्लो की प्रोसेस इंजेक्शन पे, यू विल, एंड या इवन अंकिता यू सेड डीएलएन इंजेक्शन, राइट, ये डीएलएन इंजेक्शन का ही कोड है, ठीक है, तो आप इसको और अच्छे से फर्दर कर सकते हो। ओके, सो दिस इज एक्चुअली डीएलएन इंजेक्शन, ठीक है, आप इसको आराम से देख सकते हो क्या है क्या नहीं, ठीक है। सो oh yeah, let's come to, okay, sure. तो देखो, there is a function called load library, okay, load library, ठीक है, load library function MSBN। एक्चुअली मेरे पास कम टाइम है आज, मुझे एक मीटिंग करनी है कुछ देर में एंड बहुत कुछ जगह बताने को, दैट्स व्हाई, तो प्लीज लाइक माइंड मत करना, थोड़ा सा आज कम बता पा रहा हूँ, बट हम ऑफ कोर्स इसके बारे में ज्यादा अच्छे से जानेंगे बाद में। चिराग भैया ही नहीं आपके लिए एक मीटिंग शेड्यूल किया है ना मैम के साथ, तो आप उनको बोल सकते हो, लोड हो जाओ। तो बेसिकली देखो, मैंने डीएलएल के बारे में बताया, डीएलएल क्या होता है, डीएलएल बेसिकली हमारे लाइब्रेरी की तरह होती है, राइट, एंड वो लाइब्रेरी क्या करते हैं, मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, लाइक फंक्शन 1 सपोज, ठीक है, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4, ऐसे करके
कई सारे फंक्शंस होते हैं उस DLL फाइल के अंदर, ठीक है, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली नथिंग बट अ DLL फाइल, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम में ऑफ कोर्स हम DLL भी लोड कर सकते हैं, एंड एक फंक्शनैलिटी होती है यहाँ पे लोड लाइब्रेरी फंक्शन जो है। सो लोड लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है ना कि बेसिकली दिस इज अंडर lib loader api.h करके आता है, उसके अंदर आता है। सो इट लोड्स द स्पेसिफाइड मॉड्यूल इनटू द एड्रेस स्पेस ऑफ कॉलिंग प्रोसेस, ठीक है। आप इसका इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, इस DLL को लोड कर सकते हैं कॉलिंग प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है। तो आई कैन यूज दिस फंक्शन टू एक्चुअली लोड अ DLL फाइल जिसके अंदर कई सारे फंक्शंस है एक प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो आप इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेना, देन वी कैन हैव सम डिस्कशन, ठीक है। अभी आई विल गेट इनटू यस व्हिच वन डिटेक्शन पार्ट। ओके, सो नाउ यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है फंक्शन फ्लो, कैसे हम काम कर रहे हैं, या कैसे लाइक अगर मैं ही एनालिस्ट हूँ तो मुझे पता है कि ये फंक्शंस इस पैटर्न में कॉल किए जाएंगे। तो एज एन एनालिस्ट हमें बस इन फंक्शन का ये पैटर्न देखना है, नोटिस करना है कि अच्छा ये फंक्शन इस पैटर्न में कॉल किए जा रहे हैं क्या। फिर हम रिपोर्ट में डाल सकते हैं कि हाँ यार कि ये एक प्रोसेस इंजेक्शन टेक्निक है जो इम्प्लीमेंट की गई है, ठीक है। सो सपोज आई हैव दिस malware sample called create.exe। मेरे पास एक टूल है, रिवर्स इंजीनियरिंग टूल कॉल्ड घिड्रा। यहाँ पे घिड्रा है किसी के पास? मेरे पास है। नाइस, वेरी गुड स्वप्निल। थैंक यू। ओके, तो घिड्रा बेसिकली एक रिवर्स इंजीनियरिंग टूल है बाय द NSA। ओके, यू कैन सिंपली गो टू गूगल एंड घिड्रा। अरे यार सिस्टम बहुत ज्यादा ही फ्रीज हो जा रहा है, लेट मी क्लोज द टैब्स जस्ट अ सेकंड गाइस। हैंडल, अच्छा ये बहुत अच्छा था, इसको बताऊंगा बाद में। बाय द वे यू कैन लर्न मोर अबाउट प्रोसेसेस, प्रोसेस एक्सप्लोरर, टास्क मैनेजर, थ्रेड्स। थ्रेड्स के बारे में अगर डिटेल में जानना है, यहाँ पे सब कुछ साइबर सोसाइटी के ब्लॉग सेक्शन मैंने लिखे हुए हैं। ओके, तो यू कैन लाइक इन अ वेरी वेरी ग्रेट डिटेल। ओके, तो आप पढ़ सकते हो जाके। ओके, आगे देखते हैं घिड्रा। तो घिड्रा इज डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल ओपन सोर्स रिवर्स इंजीनियरिंग टूल है, ठीक है, क्रिएटेड बाय द NSA US। ओके, एंड इसे ओपन सोर्स आई गेस पता नहीं, कुछ बहुत टाइम हो गया ओपन सोर्स किए हुए, एंड आप देख सकते हो अराउंड 63.1K स्टार्स, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के लिए यू जस्ट नीड टू गो टू रिलीज, ओके, एंड यहाँ पे जा करके आपको यहाँ पे जो घिड्रा.zip फाइल है इसको आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। एक बार आपने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद आपको JDK यानी कि जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड करना है, ठीक है। जस्ट गो टू लाइक जावा डाउनलोड्स, ठीक है, एंड JDK 25 अभी लेटेस्ट है, वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। JDK 25 डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको घिड्रा वाले फाइल को अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद उस फोल्डर में जाना है। फोल्डर में जाने के बाद आपको एक घिड्रा.run बैट कुछ है, घिड्रा.bat या रन फाइल कुछ मिलेगा आपको, या .run फाइल मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बस चाहो तो आप शॉर्टकट क्रिएट कर लो, एंड देन योर घिड्रा इज रेडी टू गो। मैं जो सिस्टम यूज कर रहा हूँ इसमें थोड़ा पुराना घिड्रा है, ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर डार्क थीम या कुछ वो सब चीजें नहीं दिखेंगी, बट इट्स बेसिकली अ रिवर्स इंजीनियरिंग टूल और अ फ्रेमवर्क। ओके, so I want to like analyze this sample of this grade.exe। okay, ये एक real world malware sample है, ठीक है, it's a real world malware sample and it does some process injection as well as some API hooking techniques। API hooking पे तो हम नहीं जाएंगे, बट हम process injection की बात करेंगे और देखेंगे कि इस sample में हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये malware एक्चुअली में process injection कर भी रहा है या नहीं। क्योंकि अगर मैं सपोज ऐसा समझो कि अगर मैं ही काम कर रहा हूँ, मान लो एक एंटीवायरस कंपनी में या कहीं किसी कंपनी में, ठीक है, और मुझे पता चला कि किसी मैलवेयर ने सिस्टम को इन्फेक्ट किया है, ठीक है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि वो मैलवेयर कौन सी टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है सिस्टम को इन्फेक्ट करने के लिए, ठीक है, हाउ विल आई गेट टू नो इट। तो मुझे पता होना चाहिए कि वो क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं, तो उन मेथड्स को मैं उसी तरीके से देख सकता हूँ, ठीक है। तो घिड्रा के अंदर आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो बाय गोइंग टू फाइल, क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, अरे न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। नॉन, हम नहीं चाहते कि ये कोई शेयर्ड प्रोजेक्ट हो, नॉन शेयर्ड प्रोजेक्ट चलेगा, ठीक है। यू कैन कॉल इट एज ग्रेट फॉर एग्जांपल, ग्रेट 1 दे देता है, ठीक है, फिनिश, ठीक है, एंड इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ यहाँ पे। नाउ घिड्रा विल स्टार्ट टू एनालाइज एवरीथिंग एंड इट विल से दैट ओके इट्स अ विंडोज एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट, ये एक विंडोज एग्जीक्यूटेबल है, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इसका आर्किटेक्चर भी दे दे रहा है यहाँ पे। क्लिक ऑन ओके,
अब यहाँ पे इसको लोड करेगा ये, ठीक है। देखो रिवर्स इंजीनियरिंग इज डेफिनेटली मोर, एंड यहाँ पे ये कुछ डेफिनेटली ज्यादा है जितना हम देख रहे हैं उस हिसाब से। हमें असेंबली भी आनी चाहिए अगर हम असेंबली लेवल पे जाके चीजें देखना चाहते हैं तो, बट हम सिर्फ यहाँ पे फंक्शन लेवल पे ही चीजें देखेंगे। जो फंक्शंस मैंने आपको बताया, मैंने आपको बस ये याद रखना है, जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस, ओके, कि हाँ क्रिएट टूल हेल्प इनम प्रोसेस ऐसा कुछ दिख रहा है, ओपन प्रोसेस दिख रहा है, वर्चुअल अलॉग दिख रहा है, राइट प्रोसेस मेमोरी, क्रिएट रिमोट थ्रेड। अगर कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये मैलवेयर सैम्पल जो है ये एक्चुअली में प्रोसेस इंजेक्शन कर रहा है, एंड यही हमारा मोटिव है एक्चुअली। ठीक है, क्लियर है ना अब तक ये चीजें? हाँ हेलो, हाँ भैया क्लियर। क्लियर है। ठीक है, ओके, सो लेट्स क्लिक ऑन एंटर। अब इस पर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। इसने एनालाइज कर लिया इसको जो एनालाइज करना था, ठीक है। नाउ लेट्स वेट। So it will ask that it has not been analyzed. Do you want to analyze it out? Yes, I want to analyze it. Okay. I want to have like ये comments add कर देगा, कुछ एक property है मैं इसको enable कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप सीखोगे आगे चल के, डोंट वरी। आज बस आप ओवरव्यू समझो कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। You don't need to understand everything, you just need to get the overview of how things are working. Okay. Now यहाँ पे of course हमारे पास जो है ये एक disassembly का टैब आ रहा है। यहाँ पे आपको कई सारी चीजें दिखेंगी। We are not interested in these things. All I want you to focus is on this Windows button. Click on Windows. Go to symbol references. यहाँ पे एक symbol references करके एक टैब रहेगा, ठीक है। हमें बेसिकली symbol references टैब को क्लिक करना है। एक बार आपने symbol references टैब पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है, सारे के सारे फंक्शन नेम्स आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। आप देख सकते हो लाइक हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन एवरी फंक्शन। यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आता है, ओके। लेट्स स्टार्ट विद लाइक द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज लाइक कहा जाता है कि आप क्रिएट रिमोट थ्रेड से स्टार्ट करो, बैकवर्ड देखो चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये क्रिएट रिमोट थ्रेड से क्या होता है कि हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप क्रिएट रिमोट थ्रेड सर्च करो। बाय द वे लेट मी टेल यू वन थिंग, ये क्रिएट रिमोट थ्रेड बहुत सस्पिशियस फंक्शन कॉल है, ठीक है, बहुत ज्यादा सस्पिशियस फंक्शन कॉल है। इसलिए मैं थ्रेड से भी दिखाया है, इतना सस्पिशियस कि इसको एज अ सिग्नेचर भी ऐड किया गया है सिस्मॉन या किसी चीज में, ठीक है। एक टूल आता है बेसिकली, ऐसा समझो कि आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अगर देखते हैं कि क्रिएट रिमोट थ्रेड फंक्शन कॉल हो रहा है तो वो उसको हाईली सस्पिशियस मानते हैं, ऐसा समझो आप फिलहाल के, ठीक है। तो हम इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि क्या क्रिएट रिमोट थ्रेड यहाँ पे कॉल किया जा रहा है। फिर से फ्रीज हो गया, जस्ट यस, ओके, सिस्टम की लगी पड़ी है अच्छे से, ओके। तो यहाँ पे क्रिएट रिमोट रिमोट यस, आई कैन सी दैट क्रिएट रिमोट थ्रेड, एंड ये बहुत सस्पिशियस है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने क्रिएट रिमोट थ्रेड पे क्लिक किया, आई कैन सी कि यहाँ पे जो कॉल का बटन है इस पे क्लिक करेंगे तो जो एड्रेस है हम फ्रॉम लोकेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आप कोड ब्राउजर में जाओगे तो आपको दिखेगा कि हम क्रिएट रिमोट थ्रेड फंक्शन के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। ये बाकी सारी चीजें क्या है, ये पुश क्या है, ये बाकी सारी उल्टी सीधी चीजें क्या है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। वी आर इंटरेस्टेड ऑन दीज थिंग्स दैट इट इज कॉलिंग क्रिएट रिमोट थ्रेड, ठीक है। इट इज कॉलिंग व्हाट, इट इज कॉलिंग क्रिएट रिमोट थ्रेड, ठीक है। तो अगर ये क्रिएट रिमोट थ्रेड को कॉल कर रहा है तो ऑफ कोर्स हमको पता है कि हाँ यार यहाँ पे एक नया थ्रेड तो लाया जा रहा है, ठीक है, सिस्टम के अंदर। बट मुझे सिर्फ इससे काम नहीं चलाना है, मुझे ये पूरा का पूरा पैटर्न देखना है कि क्या मुझे राइट प्रोसेस मेमोरी दिखेगा, क्या मुझे वर्चुअल अलॉग दिखेगा या ओपन प्रोसेस दिखेगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इसको एनालाइज किया था, मैं मेरे पास टाइम की काफी कमी है तो इसलिए मैं क्या करता हूँ उसके ऊपर चला जा रहा हूँ, नोट्स के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी इट्स 8:11, तो मैं डायरेक्टली नोट्स पे जंप कर रहा हूँ अपने, ठीक है, ठीक है। कोडिंग है। So, okay, like again,
अगर आपने सबसेट्स के बारे में पढ़ा हो, एक सेट के अंदर अगर हम वेन डायग्राम पढ़ते हैं ना, वेन डायग्राम में जैसे सबसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रोसेस इंजेक्शन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ कोड इंजेक्शन, ठीक है। सो प्रोसेस इंजेक्शन का ये फंक्शन फ्लो था, राइट। नाउ हमने क्या किया था, हमने बेसिकली यहाँ पे देखा कि क्रिएट रिमोट थ्रेड को भी कॉल किया जा रहा है, राइट। तो आप विंडो पे क्लिक करना, विंडो पे क्लिक करने के बाद एक फंक्शन कॉल ट्रीज होता है, ठीक है। फंक्शन कॉल ट्रीज पे क्लिक करेंगे, फंक्शन कॉल ट्रीज, yes, oh, single table। तो फंक्शन कॉल ट्री यहाँ पे नीचे दिख रहा है हमें, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ऊपर एक मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें दिखने को मिलेगी, एक इनकमिंग कॉल्स है और एक आउटगोइंग कॉल्स है, ठीक है। समझते हैं दोनों का मतलब क्या होता है। तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पे इनकमिंग कॉल्स थे, इनकमिंग कॉल्स, आउटगोइंग कॉल्स, ठीक है। क्या मतलब होता है, इनकमिंग कॉल्स का मतलब होता है फंक्शंस जो करंट फंक्शन को कॉल करें, ठीक है। यानी कि जो क्रिएट रिमोट थ्रेड जो है, क्रिएट रिमोट थ्रेड को कौन कौन कॉल करेंगे। आउटगोइंग कॉल्स का मतलब क्या होता है, फंक्शंस दैट द करंट फंक्शन इटसेल्फ कॉल, ऐसे फंक्शन जो जो खुद कॉल कर रहा है उस चीज को, ओके। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, डोंट वरी, इस पे नहीं जाते हैं अभी, ओके। अभी के लिए फिलहाल हमें पैटर्न नोटिस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नोटिस किया था कि पैटर्न का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था ओपन प्रोसेस, वी वांट टू ओपन अ प्रोसेस, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ जाता हूँ, ठीक है। मुझे ओपन प्रोसेस दिख रहा है यहाँ पे, आई कैन सी ओपन प्रोसेस, ठीक है। मुझे ओपन प्रोसेस दिख रहा है। अगर मैं ओपन प्रोसेस पे क्लिक करूँ, ठीक है, कैन आई, नो, ओके। ओपन प्रोसेस तो दिख रहा है मुझे, एक फंक्शन दिखा, चलो ओपन प्रोसेस दिखा। ओपन प्रोसेस के बाद और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास वर्चुअल अलॉक है, राइट प्रोसेस मेमोरी है, क्रिएट रिमोट थ्रेड तो हमको दिखा, बट हमको अभी ये वर्चुअल अलॉक एंड राइट प्रोसेस मेमोरी अभी तक नहीं दिखा, ठीक है। हमको ये भी देखना है, तभी हम वेरीफाई होकर श्योर हो सकते हैं कि हाँ सच में ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। अभी तक क्लियर है ना गाइस, या थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं। क्लियर है, सिर्फ वो आउटगोइंग कॉल वो वाला प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल को भी अभी छोड़ो, अभी रहने दो, उसको गोली मारो, ठीक है। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, हर चीज एक दिन में नहीं सीख सकते, ठीक है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ फंक्शन पैटर्न्स पे नोटिस करते हैं। तो यस, एक और चीज दिखा मुझे, आई कैन सी ओपन प्रोसेस, आई कैन ऑल्सो सी राइट प्रोसेस मेमोरी, ओके। तो अगर मुझे राइट प्रोसेस मेमोरी भी दिख रहा है, ठीक है, इफ आई एम एबल टू सी राइट प्रोसेस मेमोरी, तो राइट प्रोसेस मेमोरी से पहले क्या होता है बताओ जरा, राइट प्रोसेस मेमोरी से पहले क्या है, बताओ, राइट प्रोसेस मेमोरी से पहले क्या है। वर्चुअल अलॉक, वर्चुअल अलॉक, एग्जैक्टली। तो मुझे यहाँ पे ओपन प्रोसेस तो दिख गया, ठीक है, मुझे राइट प्रोसेस मेमोरी भी दिख रहा है, ओके। बट आई वांट टू सी व्हाट, आई वांट टू सी वर्चुअल अलॉक एट द सेम टाइम। तो देखते हैं, इसके ठीक ऊपर एक बार देखते हैं। तो यस, आई कैन सी वर्चुअल अलॉक एट द सेम टाइम। देखो मुझे वर्चुअल अलॉक भी दिखा। ओपन प्रोसेस मेमोरी, प्रोसेस को ओपन करो, उसके अंदर मेमोरी एलोकेट करो, राइट करो, राइट, एंड राइट प्रोसेस मेमोरी ऑफ कोर्स दो बार है। क्रिएट रिमोट थ्रेड भी दिख गया मुझे, लाइक मैलवेयर को ऑफ कोर्स वो दो बार राइट कर सकता है, नॉर्मल है, ओके। राइट प्रोसेस मेमोरी आप दो बार देख सकते हो, इट्स नॉर्मल, कंप्लीटली नॉर्मल। तो आप अगर नोटिस करो तो हमने ये पूरा का पूरा पैटर्न नोटिस कर लिया, राइट। हाँ। तो मैं अपने रिपोर्ट में दे सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ कि ये जो मैलवेयर सैंपल है, दिस मैलवेयर सैंपल इज एक्चुअली ट्राइंग टू डू सम प्रोसेस इंजेक्शन without even looking at assembly and all those things. You're getting me? हाँ, That's it. यही तो हमारा काम है, खत्म। ओके, सो यस, एंड सी, ये एक डिफेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि एक डिफेंडर कैसे डिटेक्ट करेगा, हाउ द डिफेंडर विल डिटेक्ट इट, ओके। एक अगर बात करें एक अटैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या करेगा, वो चीज को डेवलप करेगा, इट विल ट्राई टू डेवलप, वो ऐसे डेवलप करेगा, एंड वो भी सेम चीज देखो,
आप यहाँ पे भी पैटर्न नोटिस करो, सेम पैटर्न, वर्चुअल अलॉक, राइट प्रोसेस मेमोरी, क्रिएट रिमोट थ्रेड, देख रहे हो ना, सेम पैटर्न यहाँ पे भी नोटिस कर सकते हो आप, ठीक है। तो डेवलपमेंट अगर आप करने जाओगे तो ऑफकोर्स आपको वहाँ पे फंक्शन के पैरामीटर्स भी डालने पड़ते हैं, बट हमको सिर्फ और सिर्फ नाम से मतलब है, ठीक है। So this how basically how like process injection can be detected inside a malware sample. Okay, using like reverse engineering tool like Gitra. All right, guys. So I hope you enjoyed today's session. I mean, काफी कुछ था बताने को, but ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर सकता एक टाइम पे, ठीक है। रोम रोम भाइयों, हैकर है भाई, हैकर है भाई साहब, इसको बोलते हैं हैकिंग। अरे अरे बस 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 भाई, ये वीडियो में मत डालना है यार, क्रॉप कर देना वीडियो को। नहीं नहीं, सिंपल चीजें हैं सब, इट्स ओके। All right, guys. So, do you have any questions, any doubts, anything? By the way, I want to give credit to those. Wait, just a second. By the way, ये जो images, ये जो images, of course, मैंने generate करवाए Gemini से, तो उसको ये खुद से बनाया था, but ये सब Gemini से credited है, okay? So let's give credit to Gemini. And another thing is what? Yes. बाकी ये जो images हैं आप जो देख रहे हो, ठीक है, ये इमेजेस एक YouTube पे पढ़ाया गया है एंड बहुत ब्यूटीफुल वे में। तो मैं सोच रहा था कि मैं कैसे क्या इमेज यूज करूं, तो मेरे को दिखा कि इस YouTube चैनल का ये इमेजेस या रेफरेंस लेना बहुत अच्छा रहेगा। सो इफ यू वांट टू लाइक लर्न अबाउट प्रोसेस इंजेक्शन इन अ डिटेल वे, ओके, लाइक ऑफ कोर्स वो जो मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया घटरा से, वो तो नहीं करवाएंगे, वो मैंने दिखा दिया ऑलरेडी। अरे भाई कहाँ गया, बट हाँ, ये इमेजेस वहीं से मिले मुझे, यहाँ पे ये वीडियो YouTube है वो चैनल। यस, सो दिस YouTube चैनल इज एक्चुअली रियली गुड, बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से पढ़ाया प्रोसेस इंजेक्शन को। तो आप लोग यहाँ से जाके सीख सकते विद सेम कंटेंट, ओके। सो लेट्स गिव क्रेडिट टू दैट गाय, एक्चुअली बहुत बहुत ब्यूटीफुल तरीके से पढ़ाया, ठीक है। एंड या, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड लाइक द मीनिंग ऑफ थ्रेड्स, processes and all those things. And of course हमने जैसे गिटरा से हमने सारा का सारा जो फंक्शन फ्लो है वो भी हमने चेक किया था, ठीक है। We looked at the function flow, like open process and again virtual asset. All right, guys. So yeah, we'll see you later. Bye. Take care. Hello. भाई मेरी वॉइस जा रही है ना? Okay, bye bye. Yes, Yeah, bye. I'm audible. बाय भैया। Bye. Take care.